کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ زلفیں اپنی وہ سجا رہے ہیں۔ اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کی مرضی، یہ ہماری محبت کا فیصلہ ہے۔ اب سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کو میرے رب نے فرمایا توحید ہوگی میری، وہ رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ نوکر ہوگا تیرا۔ یہ کیا فرمایا؟ جبریل ہوگا میرا، وہ نوکر ہوگا تیرا، یہ عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، یہ موسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، عقیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے، یہ ستارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، دھمک ہوگی تیری، یہ پھول ہوں گے میرے، مہک ہوگی تیری، یہ بلبل ہوگا میرا، گائے گا ترانہ تیرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا۔ فرمایا آمینہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ لاڈلی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ لاڈلی ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، وہ لاڈلا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا، وہ عاشق ہوگا تیرا۔ جو اویس ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا، حمزہ ہوگا میرا، وہ چچا ہوگا تیرا، یہ عرش ہوگا میرا، وہاں آنا ہوگا تیرا، عرش ہوگا میرا، وہاں آنا ہوگا تیرا، براق ہوگا میرا، سواری ہوگی تیری، بخشش ہوگی میری، شفاعت ہوگی تیری، جنت ہوگی میری، وہاں امت ہوگی تیری۔ کیا فرمایا؟ صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا، وہ شیر ہوگا تیرا۔ جو علی والی بیٹھی ہیں ذرا وہ بول دیں سبحان اللہ۔ فرمایا علی ہوگا میرا، داماد ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا، ذوالنورین ہوگا تیرا، صدیق ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، دعا ہوگی تیری، پسند ہوگی تیری، وہ مرضی ہوگی میری، جو مرضی ہوگی میری، وہ مرضی ہوگی تیری، محبوب قیامت کی یوں صبح تک، جو سنی ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا۔ یاد رکھیے گا ایمان والی میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جس کے ذکر کو میرا رب بلند فرمائے، کسی کے گھٹائے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے، جس سے روشن میرا خدا کرے۔ آؤ ماں اور بہنوں، ہر نبی آئے شان والے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر آ جاؤ، کیونکہ میں توریت نازل فرما رہا ہوں۔ آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ کیا فرمایا؟ موسیٰ کوہ طور کی پہاڑی پر آؤ گے تو میں اپنی آسمانی کتاب نازل فرماؤں گا۔ جب باری حضرت عیسیٰ کی آتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ علیہ السلام چل کے عبادت خانے میں آؤ، عبادت خانے میں آؤ گے تو میں انجیل کی کتاب نازل فرماؤں گا۔ جب داؤد علیہ السلام کو میرے رب نے فرمایا اے میرے داؤد علیہ السلام چل کے عبادت خانے کے اندر پہنچو، کیونکہ میں زبور نازل فرما رہا ہوں، لیکن قربان ہو جاؤں جب باری آمینہ کے لال کی آ گئی، جب باری محمد رسول اللہ کی آتی ہے، جب باری اللہ کے محبوب کی آتی ہے، اگر میرے آقا کریم مکہ میں ہیں تو قرآن بھی مکہ میں نازل ہوا، اگر میرے نبی مدینہ میں ہیں تو قرآن بھی مدینہ میں نازل ہوا، اگر میرے آقا کریم بستر پر ہیں قرآن وہاں نازل ہوا۔ اللہ نے میرے آقا کریم کو ایسی شان عطا فرمائی، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یاد رکھنا جب سرکار کی باری آتی ہے تو اللہ نے ایسی شان سے نوازا کہ جتنی شان میرے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی کسی پیغمبر کو بھی وہ نہیں ملی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ
ने हमें वो नबी अता फरमाया है, हमें वो नबी अता फरमाया है। लेकिन आज भी कुछ लोग एतराज करते हैं, ये मिलाद क्यों मनाते हो, ये हुजूर की आने की खुशी में झंडियाँ क्यों लगाई जा रही हैं, ये महफिल क्यों सजाते हो। लेकिन याद रखिएगा मेरी ईमान वाली बहनों, लोग टीचर डे मना रहे हैं, पूरी दुनिया में टीचर डे मनाया जाता है। जिस उस्ताद ने बच्चे को तालीम दी, अगर उसकी अता के उसका भी दिन खुशी के अंदर गुजारा जा रहा है, फादर डे मनाया जा रहा है, आज मदर डे है। वो माँ जिसने अपने बच्चे को 9 माह अपने अता के पेट में उठाए रखा, वो माँ जो अपने बच्चे के लिए दुआएं करती है, अगर उस माँ के दिन को खुशी दी जाती है, अगर उस माँ की आने की खुशी में वो दिन मनाया जा रहा है, तो उस सरकार की क्यों ना खुशी मनाएं जिसने माँ का दर्जा हमें बताया है, जिसने माँ के मकाम को हमें बताया कि माँ की अजमत क्या है, माँ का मकाम क्या है। याद रखिएगा मेरे आका करीम के आने से पहले ये अरब का रवाज होता था, जिस घर में बाप बूढ़ा हो जाता, सगे बेटे गले में रस्सा डाल लेते थे, अस्तगफिरुल्लाह, कोई जंगल में छोड़ आता, कोई जाकर बाजार में बेच आता, जिस घर में बेटी पैदा हो जाती तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी माँ बूढ़ी हो जाती, ईमान वाली मेरी बहनों, उस माँ को घर की खादिमा बना लिया जाता। लेकिन सरकार की आने के क्यों ना खुशी मनाई जाए। इस नबी का आने का सदका अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत अता फरमा दी। जिस नबी के आने का सदका अल्लाह ने बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है। बेटियों को अगर बेटियों का मकाम मिला तो मेरे मोहम्मद का सदका मिला है, अगर माँ को माँ का मकाम मिला है तो मेरे मोहम्मद का सदका मिला है। तो फिर क्यों ना उस आका की आने की खुशी में महफिल सजाई जाए। लेकिन कुछ लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह अकबर, सरकार की वालिदा मुसलमान नहीं थी। तो याद रखना मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीवार के साथ टेक लगाते हैं, उस यहूदी की बीवी को अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी थी। तो फातिमा तुज ज़हरा फरमाती हैं, एक दिन गर्मी की शिद्दत में मैं बैठकर तंदूर में रोटी बना रही थी, तो मैंने रोटियां लगाई, ऊपर से मेरे सरकार जब मेरे हुजूर तशरीफ ले गए तो बीबी फातिमा तुज ज़हरा को देखा, कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं, गीले कपड़े देखे, फरमाया बेटी हट जाओ, तेरे हिस्से की रोटी तेरा बाबा मोहम्मद बनाएगा। अल्लाह अकबर, सरकार की आर्जी पर कुर्बान हो जाएं। अगर सैर करने को दिल होता है तो अर्श की सैर कराते हैं, आर्जी इतनी है बैठकर तंदूर पर रोटियां पका रहे हैं। बीबी फातिमा तुज ज़हरा फरमाती हैं, अब्बा जान जो रोटियां मैंने बनाई हैं वो तो पक गई हैं, जो आपने 2 रोटियां बनाई वो कच्ची हैं। बाबा जी रोटियां नहीं बन रही, मैं कच्ची उतार के ले आई हूँ, रात से पर्दा हटाइए, क्या मामला है। सरकार फरमाते हैं बेटी ये तो दुनिया की आग है, यहाँ जहन्नम की आग भी आ जाए रोटी पर असर नहीं करेगी, क्योंकि आटे को हाथ मोहम्मद ने लगा दिए। इसको इस आटे पर कभी भी दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी ले आओ तो असर नहीं करेगी, आटे को हाथ मोहम्मद ने लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, इस आटे को हाथ मेरे नबी ने लगा दिए, वो रोटी पर आग असर नहीं कर रही। सरकार एक मर्तबा बाजार से गुजरने लगे, अचानक सहाबी नजर आते हैं, तो मेरे आका करीम ने उस सहाबी से गुफ्तगू फरमाते हुए दीवार के साथ टेक लगाई। अंदर यहूदी की बीवी के कानों में आवाज मेरे नबी की जाती है, वो दौड़ कर आती है, अरे आवाज इतनी प्यारी है, देख कर आऊं वो खुद कितना प्यारा होगा। दौड़ कर आई, देखा, जब देखा तो सोचने लगी ये तो वही है जिसका चेहरा देखते ही इंसान सुना है कि अपना ईमान से हाथ धो बैठता है। वो दौड़कर अंदर गई, खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर डाले, कहीं इसकी आवाज सुन के मुसलमान ना बन जाऊं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मैंने इसको जन्नत अता फरमाई। जिब्राइल बड़ा हैरान है, अल्लाह इसने तेरे महबूब को देखा, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, अल्लाह तो इसको जन्नत दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ, इसने खिड़कियां बंद कर दी लेकिन मैंने इसकी दिल की खिड़कियां खोल डाली हैं, मैंने इसकी दिल की खिड़कियों को खोल दिया है। अल्लाह इतना बड़ा करम ये क्यों कर रहे हो, क्यों फरमा रहे हो, इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोजा नहीं रखा, अल्लाह इतनी जल्दी जन्नत कैसे मिल गई। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरी रहमत गवारा नहीं करती, जिस मकान के साथ दीवार के साथ टेक मेरा मोहम्मद लगाए उस औरत को मैंने जन्नत अता फरमा दी।
बताया कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, जिस दीवार के साथ टेक मेरा मोहम्मद लगाए उसको मैं जहन्नुम में कैसे जाने दूं, मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत को जन्नत अता फरमाई है। तो रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी जन्नत अता फरमाई। रोटी पर भी आग असर नहीं की जिस आटे को हाथ मेरे मोहम्मद ने लगा दिए, जिस आटे को हाथ मेरे मोहम्मद ने लगा दिए उस पर भी आग असर नहीं कर रही। तो वो माँ जिसके लिए बातें करते हैं कि सरकार की वालिदा मुसलमान नहीं थी, अल्लाह अकबर, जिस आटे को हाथ नबी के लग जाते हैं आग असर नहीं कर रही, जिस दीवार पर सरकार की मुबारक टेक लगा लेते हैं तो उस औरत को अल्लाह ने जहन्नुम में जाने नहीं दिया, तो वो माँ का क्या मकाम होगा। इस माँ के शिकम में सरकार 9 महीने रह के आए हैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। उस माँ का क्या मकाम होगा, गौर कीजिएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में गए, 40 दिन मछली के पेट में रहे। तो मछली कहती है, अल्लाह तेरे पैगंबर को मैंने 40 दिन संभाला है, अपने पेट में रखा है, अल्लाह मुझे कोई इनाम दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, जा तुझे मैंने इतनी इज्जत अता फरमाई है कि हफ्ते के रोज कोई मछलियां नहीं पकड़ेगा, सारी मछलियां तेरा दीदार किया करेंगी। तुझे मैंने इतनी इज्जत अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हफ्ते के रोज यहाँ के लोग मछलियां नहीं पकड़ेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम को कहो हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ने, क्योंकि उस रोज सारी मछलियां उसका दीदार करती हैं जिसके पेट में अल्लाह के पैगंबर रह के आए। अगर मछली को इतनी शान से नवाजा जा रहा है जिसके पेट में 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम रह के आए, तो उस माँ का क्या मकाम होगा। इस माँ के शिकम में सरकार 9 महीने रह के आए हैं, उस माँ की क्या अजमत होगी। बीबी आमीना फरमाती हैं, मेरे घर में परिंदे आते थे सफेद रंग के, मेरे घर का तवाफ किया करते थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं असल में वो परिंदे नहीं थे, वो अल्लाह के फरिश्ते थे, हुजूर के आने का इंतजार किया करते थे, देखा करते थे कब हमारे आका आएंगे। यहाँ से पता चला ईमान वाली मेरी बहनों, वो जब हत्ता के मेरे आका करीम को अल्लाह ने मेरी हुजूर की माँ को इस कदर शान से नवाजा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर मेरे मोहम्मद का रखा गया, तो फरिश्ते आपके पीछे खड़े होकर दीदार किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फिर नूर जब हजरत आदम की पेशानी में रखा, फिर फरिश्ते आगे आ गए। फरिश्ते कहता कि जब सामने आए तो अल्लाह ने फरमाया, अब आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पहले फरिश्ते मेरी ताजीम किया करते थे, मैं आगे होता था, ये मेरे पीछे होते थे, अब ये फरिश्ते मेरे सामने क्यों खड़े हो जाते हैं। अल्लाह राज क्या है, पहले मेरे पीछे रहते थे अब सामने आ गए। अल्लाह ने फरमाया, सिर्फ आदम बात तेरी नहीं है, बात मेरे मोहम्मद मुस्तफा की है, क्योंकि पहले वो नूर पुश्त में रखा गया था तो फरिश्ते दीदार पीछे पुश्त का किया करते थे। जब वो नूर मुहम्मद रसूलुल्लाह का मैंने तेरी पेशानी में रखा तो वो नूर देखकर सामने ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरे अल्लाह वो नूर मुहम्मद का मुझे भी दिखलाइए। अल्लाह ने फरमाया, अपने दोनों अंगूठे जोड़ो तो उसमें नूर मुहम्मद का नजर आ जाएगा। जब आपने दोनों अंगूठों को साथ मिलाया तो मेरे मुहम्मद का नूर नजर आ रहा था। आपको इतना प्यार आया, बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने चूम कर अपनी आंखों पर लगा लिया। जो आदम अलैहिस्सलाम की आज भी औलाद कुछ हत्ता की सुन्नत को जिंदा कर रही है। आज भी कुछ लोग लेकिन एतराज करते हैं, लेकिन उनसे हम यही कहते हैं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने नूर मुहम्मद मुस्तफा का चूमा था, हम भी उनकी औलाद हैं तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। याद रखिएगा, वो नूर पाक पुश्तों से आता हुआ जनाब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक आया है। हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमक आया। जब वो नूर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में था, मुफस्सिरीन लिखते हैं वहाँ मक्के की औरतें छुप छुप कर हजरत अब्दुल्लाह का दीदार किया करती थी। कोई अपने घर की कोनों में खड़ी हो जाती, दरवाजे की नुकरों से देखती, क्योंकि अल्लाह ने हुस्न इतना अता फरमाया था। लेकिन जब आपके हत्ता के मक्के के सरदार सोते हैं तो ख्वाब में एक बुजुर्ग मिलते हैं, फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब तेरा बेटा जवान हो चुका है, उधर आमीना नाम की लड़की एक मदीना में जवान हो चुकी है, जाओ अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ने तेरे बेटे का रिश्ता आमीना से तय फरमा दिया। मक्के के सरदार की आंख खुलती है, फजर का वक्त था, वहां के बड़े बड़ों को साथ लेकर दरवाजा बजाते हैं।
अब्दुल मुनाफ फरमाते हैं कैसे आए हो, मक्के के सरदार हो, मक्के के मतवल्ली हो, कैसे तशरीफ लाए हो? फरमाया हम खुद नहीं आए, हम भेजे गए हैं, अता कि तुम्हारी बेटी आमिना के रिश्ते की बात करने आए हैं। हज़रत अब्दुल मुनाफ ने फरमाया था जाओ मक्के के सरदार, मुझे रिश्ता आज भी मंजूर है, कल भी मंजूर है। फरमाया रिश्ता मंजूर कैसे कर लिया? कोई अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे तो नहीं करता। पहले नौजवान को देखते हैं, कारोबार पूछते हैं, आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपने कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही हाँ कर दी है, वो कैसे? तो हज़रत अब्दुल मुनाफ ने फरमाया हाँ मैं कैसे ना करूं, जो तुझे भेजने वाला ख्वाब में नजर आया था वो मुझे भी पैगाम दे गया था। याद रखिएगा किसी का रिश्ता मामू तय करता है, चाचू तय करता है, लेकिन सरकार की अम्मा बाप का रिश्ता 70,000 के नबियों के हज़रत इब्राहीम पैगाम लाए थे। सुभान अल्लाह। मुख्तसर किस्सा, हज़रत आमिना की शादी हो जाती है। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा हज़रत आमिना फरमाती हैं शादी को चंद माह गुजरे थे, हत्ता कि अब 2 महीने का मुझे हमल था, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। हमारे अरब में रवाज था शोहर फोत हो जाता था, वो बेवा पूरा साल खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, बनाओ सिंगार नहीं कर सकती थी, नया लिबास नहीं पहन सकती थी। हमारे यहाँ ये रवाज था, लेकिन कुछ माह गुजरे मेरे जिस्म से खुशबुएं आना शुरू हो गई। कुछ ही मंथ गुजरे थे, खुशबू महकने लगी। तो हजरत आमिना फरमाती लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। मक्के के सरदार के पास लोग जमा होके आते हैं, कहते हैं तुझे पता है ना हमारे यहाँ रवाज है बेवा खुशबू नहीं लगाती, तेरी आमिना क्यों खुशबू लगाती है? क्या उसको शोहर का गम नहीं है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में आते हैं, अपनी बीवी से फरमाते हैं ए फातिमा, उनका नाम भी फातिमा था, फरमाते हैं जाओ अपनी बहू आमिना से पूछो तो सही ये खुशबुएं क्यों लगा रही है, आज मुझे लोग बातें सुना के गए। आप फरमाती हैं हुजूर की दादी फरमाती हैं कि ए मेरे शोहर मेरे सरताज, मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एक दिन बात करने का सोचा था तो आमिना के पेशाने से ऐसा नूर निकला कि नूर मैं बर्दाश्त ना कर सकी, बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं उससे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, आप खुद ही बात कीजिए। अब मक्के के सरदार आते हैं, बेटी आमिना मैं क्या सुन के आया हूँ, क्या तुझे मेरे बेटे का गम नहीं है? क्या खुशबुएं क्यों लगाती हो? बीबी आमिना रो पड़ी, रो कर कहती है मेरे बाबा जान आप किस खुशबू की बात कर रहे हो, किस गम की बात कर रहे हो? कोई मुझसे पूछ कर को देखो मुझे मेरे अब्दुल्लाह का कितना गम है। जिस दिन से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ कभी आमिना ने पेट भर के खाना नहीं खाया, आमिना ने जी भर के सोई नहीं। ऐ अब्बा जान किस गम की बात करते हो? फरमाते हैं बेटी अगर सोग मना रही हो, अगर गम है तो फिर खुशबू क्यों लगाती हो? बाबा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि राज की बात तो ये थी, एक दर्द था मेरे सीने में, उस राज को मैं बताना नहीं चाहती थी, आज पूछ लिया मुझे बताना पड़ गया है। अब्बा जान राज की बात ये है जिनके अब्दुल्लाह की अमरत मेरे शिकम में आई है, खुशबुएं खुद ब खुद आया करती हैं। अब्बा जान मैं नहीं जानती, बल्कि बात सिर्फ खुशबू तक नहीं है, बात बड़ी दूर की है। ए अब्बा जान जब मैं कुएं पर जाती हूँ पानी भी खुद किनारे पे आ जाता है। वहां की औरतें कहती आमीना जब तक हम पानी भर के घर नहीं लौटेंगी तब तक कुएं पर ही रहना, अगर तू खड़ी रहती है तो पानी भी किनारे पर रहता है, तू चली जाती है पानी नीचे हो जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, फरमाया बेटी मैं बड़ा नसीब वाला हूँ, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल फरमा ली। अल्लाह को बीबी आमिना फरमाती हैं अब्बा जान कौन सी दुआएं कौन सा वादा? फरमाया ए मेरी बेटी जब मेरा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया मैंने काबे का गुलाब पकड़ा, मैं रोकर दुआएं मांग रहा था, अल्लाह मेरे 11 बेटे और भी हैं, अल्लाह मैं तो सब्र कर जाऊंगा, अपने बेटों को देखूंगा, अपनी आंखें ठंडी कर लूंगा। ए मेरे मौला मेरी आमिना करो ना मुझसे देखा नहीं जाता, वो रात दिन आंसू बहाती है, मुझे अता के ऐसा मेरी आमिना को बेटा अता फरमा दे, आमिना का सहारा बन जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटी आमिना जब मैंने ये दुआएं की तो आवाज आई थी हत्ता कि तुमने तो सिर्फ आमिना का सहारा मांगा है, हमने 2 जहां का सहारा देने का प्रोग्राम बनाया है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाती हैं बाबा बात यही खत्म नहीं होती, हर महीने की पहली रात होती है पैगंबर दीदार करवाते हैं, पैगंबर दीदार करवाते हैं। याद रखिएगा सैयदा आमिना फरमाती हैं फिर वो वक्त करीब आ गया, मेरे मोहम्मद के आने का वक्त हो गया। फरमाती हर माँ का ख्वाहिश, हर माँ का ये ख्वाब होता है, ख्याल होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम आने वाले बच्चे को देखें, ये माँ पे मेरी तरह है या बाप की तरह या भाई या चाचू ये किस पे गया है।
तो बीबी आमीना फरमाती लम्मा नजरतुहु, मेरी नजरों ने देखा, मेरी नजरों ने क्या देखा, काना मदहुलन मकहुलन, आंखों में सुरमा भी पहले लगा हुआ था, सर में तेल भी लगा हुआ था, मुअत्तरन, अत्तर की खुशबू आ रही थी, मुतहरन, पाक और साफ बन के आए। याद रखिएगा, फरमाती हैं औकाना साजिदा, मेरे लाल ने आपको सजदा करके दिखाया है। ये वो लजपाल नबी हैं, आते ही अपनी उम्मत को याद कर रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो इसलिए अल्लाह ने फिर अर्श पर ऐलान फरमाया, आज जन्नत को सजा दिया जाए, जहन्नम को बुझा दिया जाए। ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ जमीन पर चले जाओ, मोहम्मद की मुबारकें दे के आओ। तो जिब्राइल भी आ रहा था, क्या कह रहा था, अहलऊ व सहलऊ मरहबा, मतलब आसमान से सितारे इतने करीब आ गए, फरमाती है मुझे डर लगने लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे टूट कर अभी मेरे घर में गिर पड़ेंगे, इतने मेरे के छत के करीब आ चुके थे और मेरे घर में हर तरफ हीरे मोती बिखेरे जा रहे थे। फिर मैंने सोचा, हज़रत आमीना फरमाती हैं मुझे ना प्यास महसूस हुई, एक फरिश्ते ने एक ऐसा शरबत का गिलास पकड़ाया जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था, फरमाती दूध से भी ज्यादा सफेद लग रहा था, जब नोश फरमाया तो शहद से भी मीठा लग रहा था। बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं वो जन्नत से अल्लाह ने शरबत अता फरमा दिया था। तो हजरत आमीना फरमाती हैं मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, आसमान से बादल का टुकड़ा आता है, मेरे लाल को लेकर चला जाता है, मैं रोने लगी, मेरे लाल को ये कहाँ ले गया। फिर थोड़ी देर के बाद टुकड़ा बादल का वापस ले आया, मेरे मोहम्मद के जिस्म पर पानी के कतरे नजर आ रहे थे। कहने वाले ने कहा हमने इसको ताकि समुंदर की तह की सैर करवा दी है, हमने 7 आसमान की सैर करवाई है, कायनात के जर्रे जर्रे को तारुफ करवा दिया है, क्योंकि इसलिए तो फिर जर्रा जर्रा भी दरूद पड़ता है, टहनी टहनी भी दरूद पड़ती है, पत्ता पत्ता भी दरूद पड़ता है, एक हम ही नहीं सारा जमाना दरूद पड़ता है, सारा जमाना दरूद पड़ता है। इसलिए कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई कर्जा, हर टेंशन, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। मुश्किलों ने घेरा है तो उसका एक इलाज है, बस पढ़ा करे सल्ले अला मुहम्मद। फरिश्ते ने आवाज दी, हमने कायनात के जर्रे जर्रे को मोहम्मद का तारुफ करवा दिया है, हमने जर्रे जर्रे को मोहम्मद मुस्तफ़ा का तारुफ करवा दिया है। अरे ये आम नहीं, ये आने वाला आम नहीं है, ये नबियों का भी इमाम बन के आया है, ये नबियों का भी इमाम बन के आया है। हजरत आमीना फरमाती हैं वो घड़ियां जब आई मेरा पूरा घर रोशन ही रोशन हो गया था। उधर से रात रोकर कहती है अल्लाह अपने हबीब को रात को पैदा करना ताकि रात की शान बुलंद हो जाएगी। दिन कहता है अल्लाह अपने हबीब को दिन को पैदा करना ताकि दिन की शान बुलंद हो जाएगी। मगर मेरा अल्लाह न रात को नाराज करता है न दिन को नाराज करता है। रात जा रही थी, दिन ना रहा जब मेरे मोहम्मद दुनिया में आए थे। सुभान अल्लाह, रहमत की तस्वीर बनकर, आशिकों की जगीर बनकर, कुल नबियों के पीर बनकर सरकार दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, ये जमीन पर खुशियां थी, उधर से फरिश्ते आ रहे थे। इजराइल रास्ते में इजराइल रुक गया। अल्लाह ने फरमाया इजराइल तुझे मैंने सबको भेजा है, मुबारक मोहम्मद की दे आओ, आप क्यों नहीं जा रहे हो। इजराइल कहता है अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, अल्लाह मैं तो जिस घर में चला जाऊं रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है। आज जिस घर में जाऊं बेटी रोएगी जिसकी माँ लेके आऊंगा, जिसका बाप लेके आऊंगा औलाद रोएगी, जिसका शोहर ले आऊं बीवियां रोएंगी। अल्लाह ने फरमाया इजराइल परेशान ना हो, तेरी ड्यूटी भले सख्त है लेकिन आज तेरी ड्यूटी की मैंने छुट्टी कर दी है। तो मरने वालों की जिंदगी को खैरात बख्श दी है, क्योंकि मेरा महबूब दुनिया में जाए किसी घर में रोने की आवाज नहीं, खुशियों की सदा आनी चाहिए, खुशियों की सदा आनी चाहिए। तो फरिश्ते भी जमीन पर उतर आए, हूरें भी आकर मेरे मोहम्मद की मुबारकें देती हैं। उधर से मक्के के सरदार आते हैं, फरमाते हैं बेटी आमीना अल्लाह बेटा दे, माएँ बढ़िया खुशी करती हैं, तेरी आंख में मुझे आंसू क्यों नजर आ रहे हैं। रोकर फरमाती हैं अब्बा जान मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ये अब्बू अब्बू करके रोया करेगा, मैं इसको कैसे तसलियां दिया करूंगी। जब मेरा लाल बड़ा होगा इसका दिल चाहेगा मैंने अपने बाबा के साथ खिलौने खरीद के आने हैं, आज सैर करने को दिल करता है तो इसको मैं कैसे तसलियां दिया करूंगी। जब मेरे लाल का दिल करेगा आज मैंने अपने बाबा के सीने पर खेलना है, इसको मैं कैसे चुप करवाया करूंगी। जब मेरे लाल का दिल करेगा आज मैंने अपने बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी है तो इसको मैं
कैसे चुप करवाऊंगे, लेकिन आपके हुजरे के नुक्कर से आवाज आई, आमीना ये अब्बू अब्बू करके नहीं रोएगा, ये अल्लाह अल्लाह के नारे लगाएगा। ऐ आमीना, जब इसका दिल चाहेगा मैंने अपने बाबा के साथ सैर को निकलना है, हम इसको अर्श की सैरें करवाएंगे। जब इसका दिल चाहेगा आज मैंने अपने बाबा के सीने पर खेलना है, हम काबा की हतीम में खेलने की जगह बना देंगे। जब इसका दिल चाहेगा आज मैंने बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, हम पत्थरों को बोलने की हिम्मत अता फरमाएंगे। जब इसका दिल चाहेगा आज मैंने बाबा की उंगली पकड़नी है, सैर को जाना है, तो इसकी उंगली के इशारे दरख्तों को चलने का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये सरकार की आमद की खुशियां मनाई जा रही थी और अब मक्के के सरदार ने आते ही बड़े बड़े ऊंट ज़िबा कराए, बड़े लंगर का इंतजाम किया, मोहल्ले वालों को बुलाया, लोगों आओ मेरे घर में दावत का इंतजाम है, क्योंकि अल्लाह ने चांद जैसा पोता अता फरमाया है। लोग आकर कहते हैं मक्के के सरदार हो, मक्के के मतवल्ली हो, बताओ तो सही पोता इतना प्यारा है, नाम क्या रखा है? फरमाते हैं इसका नाम हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा रखा है। लोग कहते हैं मक्के के मतवल्ली हो, मक्के के सरदार हो, नाम बड़ा प्यारा है, लेकिन नया सा नाम है, पहले कभी नहीं सुना, ये कैसे सोचा है? फरमाया ये आने वाला भी आम नहीं आया, इसकी दाइयां भी अर्श से चल के आई थी, इसकी हूरें मुबारकें देने आई थी, क्योंकि इसका नाम अल्लाह ने खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा रखा। अब हूरें भी मुबारकें दे रही थी।